So everyone note down. So this is the second time we are doing probability, and in the first class I had explained you what is probability. We had done the concepts and in the topic we have covered properly. ऐसा नहीं कि उन्होंने cover नहीं किया था. But now this is the second time where we'll be covering topic with proper, I mean concept. क्योंकि वो concept पे भी हम बहुत सारा चीज जो है last time जैसे बता दिए थे कि ऐसे करो, but उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताए थे. तो अभी हम क्या करेंगे वो चीज भी क्लियर करके हम आगे हम लोग पढ़ेंगे. Okay. So now I here begin with the first topic, that is independent event. तो ध्यान देना ही पड़ सकता. सबसे पहला चीज इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है. See, what do you mean by independent events? Now, see, if you see your copy, I'll better like one more thing. I'll better ask everyone to keep your copy. जो पहले already probability किया हुआ copy है, उस copy को लेके बैठो. ठीक है? जो पहले का copy है, उस copy को लेके बैठोगे तो क्या होगा? बहुत फायदा होगा. ठीक है? हम लोग आगे फटाफट बढ़ पाएंगे. ओके? तो मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है. Now, independent event start करने से पहले you all know that you can check in a copy that probability of E union F is probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. Probability of E intersection F is probability of E plus probability of F minus probability of E union F, and there are several, I mean और भी बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को दिया है. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. तो ये बेसिक फॉर्मूला तो तुम लोगों को सबको पता है. अब ध्यान देना इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है. See, two or more events are said to be independent if the probability of occurrence of one, two or more events are said to be independent if the probability of occurrence of one event is not dependent. Okay, not dependent मतलब dependent नहीं होता है. Is not dependent on the probability of occurrence of other. For example, let us take one example to see this thing properly. जैसे मान लें कि हम लोग कॉइन को दो बार फेंके. ठीक है, एक कॉइन को अगर हम दो बार फेंके, suppose if I throw a coin 2 times, we find that we will get head tail, tail head, tail tail and head head. Now what we find here कि अगर मान लो तुमसे पूछा जाए what is the probability of getting two head, probability of getting two head अगर बोला जाए two heads, so we find that it is out of 4 possible ways two heads comes in how many possible ways? 1. So answer हो जाएगा 1/4. Now also you just see in another way, but ध्यान से नोट करना. ये जो आंसर 1/4 आ रहा है, पर ध्यान से नोट करना. Let E be the event of getting a head. F be the event of getting a tail. Now probability of getting head when a coin is thrown. See, probability of getting a head when a coin is thrown. एक coin को अगर हम toss करेंगे तो getting a head का probability क्या होगा? Half. Is the event of getting a head when a coin is tossed. Okay, let me write down when a coin is tossed. When a coin is tossed. Okay, so what is the probability of getting a head when a coin is tossed? एक coin को अगर हम toss करेंगे तो probability of getting head क्या होगा? Half. And probability of getting tail क्या होगा? वो भी half हो जाएगा. और मान लो अगर तुमसे पूछा जाए what is the probability of getting two heads when a coin is tossed twice.
So that you all know that it is 1/4. Now just see, try to see the relationship जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ. Now we find that probability of getting 2 heads when a coin is tossed twice is probability of getting head in the first toss and probability of getting head in the second toss. Are you understanding? मतलब हम लोग क्या जानना चाहते हैं बताओ तो? हम लोग जानना चाहते हैं कि एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहला टॉस में भी हेड मिलेगा एंड दूसरा टॉस में भी हेड मिलेगा. इसी को तो ना बोलते हैं ना गेटिंग 2 हेड्स. ठीक है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन. अब देखो एक बात, ये जो आंसर आ रहा है ये क्या बताओ तो 1/4. और क्या मैं बोल सकता हूं ये जो आंसर 1/4 है, दिस आंसर 1/4 इज इक्वल टू 1/2. नोट डाउन, इट इज इक्वल्स टू 1/2 into 1/2. And what is 1/2? 1/2 is the probability of getting a head when a coin is tossed. What is this 1/2? Again the probability of getting head when a coin is tossed. So we find that अगर हमको मान लो probability of getting head when a coin is tossed twice, 2 heads निकालना हो, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट दोनों अलग अलग इवेंट्स का मतलब दो, पहला बार probability of getting head हाफ होगा, दूसरा बार भी हाफ होगा. अगर ये दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे जो आंसर आएगा 1/4, क्या इसके बराबर है कि नहीं? हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमने बेसिक कांसेप्ट यूज किया प्रोबेबिलिटी का, बेसिक कांसेप्ट क्या था कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो आउटकम्स कितना होगा? 4. तो वो 4 पॉसिबल आउटकम में 2 हेड्स कितने बार आएगा? 1 बार. ठीक है, तो ये 1/4 जो है किसके बराबर है? देखो तो फर्स्ट बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाफ. सेकंड बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाफ. तो देखो जब मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है. देखो ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट. और जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो हम लोग वहां पे बेसिक लॉ के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल लॉ है, कुछ एक्सेप्शनल केस है, फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और वो क्या फॉर्मूला है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो फिर हम यहाँ पे जितने भी इवेंट्स है, अगर मुझे इन सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, जितने भी इवेंट्स है 2 3 4 जितने भी इवेंट्स, अगर मुझे इन सारा का इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे इवेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. We will multiply all the events and the answer which will get is equal to the product of probabilities of all the events, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं. देखो यहाँ अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि एक कॉइन को टॉस करेंगे हम लोग, so what is the probability of when a coin is tossed 3 times. अब फिर से सुनना, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग. एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 8. उसमें से 3 हेड कितने वे से आएगा बताओ तो? 3 हेड्स कितने वे से अकर करेगा बताओ तो? एक तरीके से 1/8. अब तुम देखो ये जो 1/8 है किसके बराबर है? देखो तो एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस इनटू probability of getting head in the second toss into probability of getting head in the third toss. So we are finding that this is only possible if the events are not dependent on each other. If the events are what? Independent. सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमको बहुत सारे चीज का साइमल्टेनियस अकरेंस निकालना हो, बहुत सारे इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, मतलब एक साथ अकरेंस का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? सारे इवेंट्स का हम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. समझ में आया तो सबको कई बार. अब देखो अगर हम मान लो इस तरह भी अगर हम लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 2 कॉइन के लेके ही बताता हूँ मैं ये चीज को. ठीक है, एक बार अगर ये सब चीज कॉपी करना है तो कॉपी कर लेगा पहले. ठीक है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट वंस अगेन आई मीन सी कि क्या हम लोगों ने किया क्लास में. So next, see everyone once again listen here. We are doing starting with independent event. So this was the brief I have given you about. एक ब्रीफ समरी मैंने दिया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है उसके बारे में. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यूज किया जहां पे बताया कि देखो बेसिक लॉ से जो आंसर आ रहा है इंडिपेंडेंट वाला स्पेशल रूल लगा के भी वही आंसर आ रहा है, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. बाकी चीज में ये काम नहीं आता है प्रोडक्ट वाला रूल. और यहाँ पे हम सारा बेसिक रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं. अब बेसिक लॉस क्या है? देखो अपने अपने कॉपी में खोल करके फर्स्ट बार जब प्रोबेबिलिटी किया हुआ था तो सारा बेसिक लॉस मैंने बताया था कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया था. तो अब हम आगे एक सम कराते हैं इंडिपेंडेंट के ऊपर, और मैं तुम लोग को एक सम दूंगा करने के लिए, एक 2 सम बस. ठीक है, तो ध्यान से एक बार देखना मैं जो एक सम करा रहा हूँ बोर्ड पे. नाउ एवरीवन नोट डाउन. एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जहां पे मैं तुम लोग को बताऊंगा इंडिपेंडेंट इवेंट का एक रिलेशनशिप को मैं समझा रहा हूँ. देखना एक बार ध्यान से. एक कॉइन को मान लो हम लोग 3 बार टॉस करेंगे.
Let's toss a coin 3 times. So the outcomes are 8. Total outcomes are 8. And they are head, 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 tail. Now head, head, tail occurs in how many ways? देखो अब हम ये सब चीज का भी तरीका एक बार बताते हैं कि दो हेड और एक टेल कितने वे से अकर करेगा, ये भी जानने का मैं तरीका बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें हम क्लास 11 का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। दो हेड और एक टेल कितने वे से अकर करेगा? तो तीन चीजों को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो हेड रिपीट कर रहे हैं, सो क्योंकि रेपिटेशन है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। मुझे तीन चीजों को अरेंज करना है टेकिंग 3 थिंग्स एट अ टाइम। हमको तीन चीजों को अरेंज करना है टेकिंग 3 थिंग्स एट अ टाइम, इट इज 3p3। और याद होगा क्लास 11 में देखा था तुम लोग कि जब जो चीज रिपीट करता है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2h रिपीट कर रहा है तो बाय 2 फैक्टोरियल। 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल सॉल्व करके 3 आ रहा है। मतलब दो हेड और एक टेल कितने वे से अकर करेगा? 3 वे से। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीसरा। समझ में आया सबको? अब देखो एक बार, दो हेड एक टेल हो गया, एक हेड और दो टेल कितने वे से अकर करेगा? सेम 3 वे से, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और तीनों का तीनों टेल एक ही तरीके से अकर करेगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ऑल पॉसिबल वेज हो गए 8। अगर मान लो तुमसे ये कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो आउट ऑफ 8 वेज दो हेड कितने वे से? एग्जैक्टली दो का मतलब क्या होता है? ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तो दो हेड कितने वे से अकर कर रहा है? 3 वे से। सो 3/8 इज द आंसर। अब मैं इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला हूं, देखना। क्योंकि हमको पता है कि एक कॉइन को हम इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स क्यों ना हम टॉस करें, हर बार इररेस्पेक्टिव कि हम कौन से बार टॉस कर रहे हैं, हर बार probability of getting head and getting tail, sorry, probability of getting head is also half, and if I separately if I say probability of getting tail, that is also half। मतलब कोई भी तुम्हारा किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया तो बात? तो अगर हम मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं लेट ई बी द event of getting a tail head when a coin is tossed, when a coin is tossed। कौन से बार नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉइन को टॉस करो, हर बार हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगा और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ रहेगा। मैं एक और इवेंट डिफाइन नहीं कर रहा, कल इसी से हो जाएगा। अगर मान लो मुझे बोला जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब हमको क्या पूछा जा रहा है? हम लोग को पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब हो गया कि head in the first, head in the second, tail in the third, or tail in the first, head in the second, head in the third, or head in the first, tail in the second, head in the third। अब देखो क्योंकि ये सारा simultaneous occurrence मतलब ये I'm sorry I must write, okay मैं एक काम करता हूँ, head आने का h और tail आने का probability को t से डिवाइड कर देना, हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ जाना तुम लोग। h मतलब हेड और t मतलब टेल, समझ जाना तुम। मैं अभी बात करूंगा, ये रब करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो ये तीनों इवेंट्स का होने का साइमल्टेनियस एक साथ occurrence का प्रोबेबिलिटी में निकालने के लिए हम क्या तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, आई कैन मल्टीप्लाई। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज ऑल दिस 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। समझ में आया तो बात? h इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, which टाइम कॉइन इज टॉस्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी सेम है। हम क्या कर सकते हैं? सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे इवेंट्स को बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। And it is half into half into half, which is 1/8, half into half into half, which is again 1/8, again 1/8, and the answer is 3/8. Just check this answer with this basic law. This is the basic law. This is special law which I have used as the events are independent. Then only we have used this law. क्या मैं ये लॉ सारी जगह अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, ये लॉ हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये तभी अप्लाई होगा जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। और देखो काम भी कर रहे हैं,
आंसर 3/8 जो आ रहा है उससे मैच भी कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ऑलराइट एवरीवन, फटाफट कॉपी करो एक बार। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस, now one more thing I have missed here, okay, that this is the case when a coin is tossed 3 times. तो एग्जैक्टली 2 हेड्स कब, जब हम कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक लॉ तो पक्का होगा सबके कॉपी में, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज किसी से अभी व्हाट्सएप मंगवा लो, या फिर अगर है तो कॉपी में जो भी तुम्हारा बेसिक लॉज है वो निकाल के रखना, क्योंकि इससे बहुत सारा चीज क्लियर होगा। अब देखो जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद सेकंड टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये सब बेसिक टर्म्स है जो मैं बता रहा हूँ पहले, ये नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस, ये सब अभी हम नहीं बता रहे। तो एक बार ध्यान से नोट करना। सेकंड टॉपिक जो है वो जानना होगा व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? तो ये टर्म का मतलब क्या होता है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन में कि अगर वो क्वेश्चन है तो उसमें जो भी बहुत सारा जो बात बोला जा रहा है वो सारे जो बात है वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो ध्यान से सुनना ही। देखो, 2 or more events are said to be mutually exclusive if the probability, if I mean 2 or more events cannot occur simultaneously, it cannot occur at the same time। जैसे देखना एक बार, what do you mean by mutually exclusive? 2 or more events are said to be mutually exclusive events if events do not occur at the same time, ठीक है। इफ द इवेंट्स डू नॉट अकर एट द सेम टाइम, जैसे तुम अगर देखा होगा तो मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया होगा कि जैसे एक आदमी एक बार में 2 चीजों पे बैठ करके एक जगह नहीं जा सकता है। एक आदमी एक बार में प्लेन और ट्रेन दोनों पे बैठ करके एक जगह कभी नहीं पहुंच सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल कवर अ पर्टिकुलर जर्नी बाय ट्रेन and a train both is what? 0, because this is impossible, it cannot occur, it cannot happen। एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो एक बार में हेड एंड टेल दोनों कभी नहीं आ सकता है। तो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 0। एक अगर हम मान लो एग्जामिनेशन में कोई भी अगर अपियर करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई मीन दैट स्टूडेंट आई मीन पासिंग एंड फेलिंग बोथ एट अ टाइम इज इम्पॉसिबल, इट इज 0। समझ में तो बात? अगर मान लो हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 2 टेल, बात को सुनना, एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करें और मैं तुमसे अगर पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 2 टेल, ऐसा पॉसिबल है? एक बार में हम कॉइन को 2 ही बार टॉस करें, एक कॉइन को हम 2 ही बार टॉस करें, या मेरे पास 2 कॉइन एक बार टॉस कर दिया मैंने, एक ही बात हुआ। और अगर हम तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 2 टेल, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 2 हेड एंड 2 टेल कैसे आ सकता है? कैसे हम सोच सकते हैं कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करके और 2 हेड और 2 टेल दोनों कैसे आ सकता है एक बार? इट इज इम्पॉसिबल। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों इवेंट्स का जो है एक साथ साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 होगा। तो याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में साइमल्टेनियस अकरेंस का कोई सवाल ही नहीं अराइज होता है। जहां पे भी इवेंट्स एक साथ अकर ना करें, वो उस इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। और वहां पे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल, एक रेस में अगर सारे हॉर्सेस का विनिंग का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है प्रोबेबिलिटी। एक रेस कोर्स में कोई एक ही हॉर्स जीतेगा अगर एक बार में, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हॉर्सेस 2 हॉर्सेस एक साथ नहीं जीत सकता है, 3 हॉर्सेस एक साथ नहीं जीत सकता है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी ऑल 3 विल विन द रेस, इट इज 0, बिकॉज जो मैं केस का बात कर रहा हूं उस केस में 2 हॉर्सेस एक साथ जीत नहीं सकता, बिकॉज सारे हॉर्सेस का पोटेंशियल अलग अलग है। हाँ, कोई ना कोई एक ही जीतेगा, मतलब कोई एक ही जीतेगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। इसका मतलब सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन वैल्यू का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। एंड मेक श्योर दैट उस केस में अगर हमको मान लो सारे इवेंट्स का यूनियन निकालना हो, यूनियन बिल्कुल हो सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ऐसा पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सारे इवेंट्स को बस ऐड कर देंगे। अगर हमको बहुत सारे इवेंट्स का यूनियन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बट हम कैसे निकालेंगे?
सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऐड करके निकालेंगे। तो क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन वो पार्ट लिख के कोई फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं फायदा है बताओ? बिकॉज वो पार्ट क्या वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो तुमसे बोला जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, चेक करो बेसिक लॉ में, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन क्या इसमें इंटरसेक्शन, अगर हम ये बोलते हैं कि ई और एफ इंटरसेक्ट सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये पार्ट लिखने का ही जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों का सम लिखने से ही हो जाएगा। एक पार्ट क्या होगा, जीरो। तो सिमिलरली अगर दो से भी ज्यादा इवेंट्स है तो बस हम सारे इवेंट्स को ऐड कर देंगे। हमको क्यों नहीं इंटरसेक्शन पार्ट को यहाँ शो करने का जरूरत है, बिकॉज जो भी होगा 2 या 3 या 4, तुम इंटरसेक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी, वो सारा का वैल्यूज क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। Sorry, I'm sorry, mutually exclusive. I hope it is clear to everyone here. If you have any doubt, please let me know. So these are the basic properties of mutually exclusive events, जो जानना बहुत important है। सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डेफिनेशन में पढ़ लीजिए ना। Two or more events are said to be, ME का मतलब mutually exclusive events if they do not occur at the same time. At the same time, okay, or you can simply write if the events do not या ठीक है, एक या simultaneously occurrence of event is not possible भी लिख सकते हो कुछ भी, okay। तो आई थिंक ओवरऑल तुम लोग को मतलब समझ में आ गया। पहले कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है। Now what do you mean by mutually exclusive and exhaustive? ये है तुम्हारा तीसरा टॉपिक। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जब ये दोनों हम बोलते हैं एक साथ तो ये क्या होता है, देखो इसमें तुमको बस ये चीज नोट करना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो मतलब है वो यहाँ भी वही होगा, मतलब वो मतलब यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब जो वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम लोग देखा था वो चीज यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट एडिशनल प्रॉपर्टी? प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स है ये सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। और इसको समझने का क्वेश्चन बस एक ही सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है, देखो क्वेश्चन में ये जरूर लिखा रहेगा, राइट डाउन, इफ 1 and only one out of these events will occur, मतलब अगर ये लाइन कहीं भी लिखा रहे कि if 1 मतलब एक का मतलब हुआ 2 नहीं अकर कर सकता है, 3 अकर नहीं कर सकता है, and only one out of these का मतलब क्या हुआ, इनमें से ही कोई एक होगा। मतलब ये हुआ कि इस इवेंट्स के अलावा और कोई है ही नहीं इवेंट्स डिस्कस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही होगा एट ए टाइम और दो, और उसके बाद जो भी होगा ये इस आउट ऑफ दिस इवेंट्स ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा कोई ऐसा इवेंट है नहीं जो बचा हुआ है डिस्कशन में। इसका मतलब सारे इवेंट्स का सम टोटल जो है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होगा, 1 होगा। इस इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आई रिपीट वंस अगेन, इफ 1 and only 1 out of these, if 1 and exactly 1 out of this मतलब इसके अलावा और कोई चीज नहीं, इनमें से कोई एक ना एक होगा, 2 एक साथ नहीं होगा, और इनके अलावा और कुछ होगा नहीं, तो इस इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जहां पे लिखा रहे 1 मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जैक्टली 1 out of these, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक, इसका मतलब वो कैसे इवेंट्स है बताओ तो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। किसी को और कुछ क्लियर करना है इसमें, समझ में आया तो बात? 1 means mutually exclusive and exactly 1 out of these मतलब इनमें से कोई ना कोई एक होगा, ओके इनमें से कोई एक ना एक होगा। उस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एक एडिशनल प्रॉपर्टी है क्या होगा, जितने भी इवेंट्स होंगे उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो है सम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। और अगर क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी मैंने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करा दिया है तो अब हम रिलेट कर सकते हैं।
जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है जहां पे हम लोग हर सम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आता ही है। कोई बता सकता है कौन सा ऐसा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में जिसमें वो चैप्टर करने का मतलब, वो सम करने का मतलब है कि उस सम में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा ही। बता सकते हैं कोई कौन सा ऐसा चैप्टर है? इंडिपेंडेंट, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें जो हम लोग मतलब उसमें हर सम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स आते ही है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Conditional probability. Base theorem. वेरी गुड, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में जो बहुत सारे इवेंट्स होता है वो कैसा इवेंट्स होता है? जो बार बार बोलते हैं ना बहुत सारे इवेंट्स और एक कॉमन इवेंट। तो जो बहुत सारे इवेंट्स होता है वो कैसा इवेंट्स होता है पता है? दे आर एवरी टाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एज वेल। जहां पे दो इवेंट एक साथ होगा नहीं, तीन इवेंट एक साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ उनमें से कोई एक ना एक इवेंट होगा। जैसे अगर हम तुम्हारे सामने 3 बैग्स रख दे और बोले एक बैग सेलेक्ट करो, तो वहां 3 बैग है तो चौथा बैग का सिलेक्शन का कोई सवाल अराइज हो सकता है? नहीं। लेकिन कोई एक ही बैग तुम सेलेक्ट करेगा तो वो एक बैग क्या 2 बैग हो सकते हैं? हाँ, मैंने एक बैग सेलेक्ट किया और 2 बैग हो गया, ऐसे कभी हो सकता है? नहीं। तो उस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो वी विल वन बाय वन रिलेट, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और हम एक एक करके सारा चीजों को रिलेट करेंगे और तब जाके क्लियर होगा। लेकिन याद रखना, हम जो बोल रहे हैं होमवर्क करके आने के लिए, नेक्स्ट डे वो होमवर्क करके आना। अभी खत्म नहीं हुआ क्लास, मैं बोल रहा हूँ, ओके? सो आई वांट एवरीवन टू जस्ट थिंक जो अभी तक हुआ है, ठीक है? देखो इसने क्या बोला है, फर्स्ट क्लियर। जैसे इसने बोला, देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है क्लियर और होगा जब तुम लोग ये पूछेगा, तो क्योंकि हर समय एक चीज नहीं रहता है बताने का, तो देखना एक बार। अब जैसे देखो, अब हम लोग अगर मान लो कॉइन के बारे में डिस्कशन करें, तो कॉइन्स में क्या होता है कि हर बार हेड का आने का प्रोबेबिलिटी, देखो हर बार कॉइन टॉस करेंगे, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगा। लेकिन हर बार अगर हम ग्रेड्स के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट नहीं है ये। तुम ये सोच रहा होगा कि एक ग्रेड लाएंगे वो बी पर डिपेंडेंट नहीं, इसको हम इंडिपेंडेंट से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम फर्स्ट बार एग्जाम दिया मैंने, मेरा ए ग्रेड भी आ सकता है, बी ग्रेड भी आ सकता है, सी ग्रेड भी आ सकता है। मतलब ये जो है ना, मतलब कॉइन का अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। देखो कॉइन को हम टॉस करें, मेरा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हर बार हेड और टेल आने का हाफ हाफ है। लेकिन हम लोग एक एग्जाम दिया, तो तुम एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम पास हो रहे या तो फेल हो रहे, बात को समझो, तुम पास हो रहे या तो फेल हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, पास हो रहा है फेल हो रहे, ठीक है, तब अलग बात है। पास हो रहेगा प्रोबेबिलिटी 1/3 है, फेल हो रहेगा प्रोबेबिलिटी 1/7 है, सॉरी पास हो रहेगा प्रोबेबिलिटी 3/10 है, फेल का प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो दोनों को ऐड करके आंसर 1 आ रहा है, वो अलग केस हो गया। वहां पे ये दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है? जैसे कॉइन को टॉस करोगे तो हेड एंड टेल दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन ये जो कॉइन्स, जो तुम्हारा ग्रेड्स वाला सम है, ये एक अलग तरह का सम है। हम ग्रेड्स वाले तरह का सम को हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट से। जैसे इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट में हर बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ये एक अलग चीज हो गया, टेल अलग चीज हो गया। लेकिन एक चीज जब हम दे रहे, जैसे एक एग्जाम दे रहे हैं, तो पास फेल, तो पास और फेल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पास होगा तो फेल नहीं होगा, फेल होगा तो पास नहीं होगा। तो बात को समझो, यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद डिपेंडेंट, आई मीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके? ये अलग तरह का केस हो गया, ठीक है? जैसे हम लोग एक एग्जाम देंगे तो मेरा ग्रेड ए आएगा या फिर बी आएगा या फिर सी आएगा, ठीक है? मतलब ए नहीं आएगा तो बी और सी दोनों आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन अगर तुम पास हुआ, अगर हम सिर्फ बात करें पास और फेल के टर्म्स में, तो पास नहीं होगा तो फेल हुआ है, फेल नहीं हुआ तो पास हुआ है, तो वो अलग तरह का इवेंट्स हो गया। एक कॉइन को टॉस किया तो तुम हेड नहीं लाया तो टेल आया था, टेल नहीं आया तो हेड आया था, समझ में आया तो बात? तो इसको कंपेयर करो तुम अपने एग्जाम का पास फेल से, ये दोनों एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक एग्जाम्पल हो गया जहां पे हम ऐसे बोलेंगे कि कॉइन को, तुम्हारे एग्जाम में तुम ए लाओगे, बी लाओगे, सी लाओगे, डी ग्रेड लाओगे, तो ए नहीं आएगा क्या तो बाकी सब आ जाएगा क्या? मतलब तुम ए ग्रेड नहीं लाए तो क्या बाकी बी सी डी सब आ जाएगा? कभी नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। बी सी डी में से भी तुम्हारा कोई एक ही ग्रेड आएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस हो गया, ये अलग तरह का इवेंट हो गया, इसको तुमको अलग रखना पड़ेगा। और पास फेल हेड टेल, इसको एक अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, समझ में आया तो बात? एंड जैसे कि डिपेंडेंट इवेंट, तो डिपेंडेंट इवेंट का अगर हम एग्जांपल दें तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या हो रहा है? जैसे कॉइन, एक हम लोगों ने मान लो सपोज बैग में सपोज 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। पहला बार रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5। पहला बार रेड बॉल अगर आ गया तो दूसरा बार रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/5। तो डिपेंडेंट है कि नहीं बताओ? 1/4, सॉरी। तो डिपेंडेंट है कि नहीं बताओ? पहला वाला पे डिपेंडेंट हुआ कि नहीं?
है कि नहीं? ओ सर समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द, तो ये डिपेंडेंट हो गया। अब जैसे कि तुम मान लो जैसे कि समझ में तो बात, ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो वो डिपेंडेंट मतलब एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला आ गया तो नहीं, नॉट नेसेसरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वे। जैसे कि मान लो डिपेंडेंट ये भी हो गया कि तुम मान लो तुम शर्ट खरीदते हैं तो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है तुम्हारा, लेकिन जब तुम कोट खरीदते हो तो तुम हमेशा ये दिमाग में रख के चलते हो कि मेरे पास घर में कौन सा शर्ट है। तो कोट का प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंडेंट है? शर्ट के सिलेक्शन। शर्ट तुम्हारे घर में क्या है, तुमने ये शर्ट रखा है तो उसके हिसाब से तुम कोट खरीद रहे हो। लेकिन बहुत लोग का मतलब ये अपना अपना चॉइसेस है। जैसे बहुत लोग का होता है कि जैसे कोट खरीद रहे हैं तो अपने शर्ट दिमाग में रख के करता है, बहुत लोग का होता है कि शर्ट खरीद रहे हैं तो कोट को दिमाग में रख के करता है। तो वो अलग चीज हो गया, आपने वो तुम्हारा सिचुएशन हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड मतलब करता है कि क्वेश्चन में बनाया कैसे गया है। जैसे कि मान लो प्रोबेबिलिटी दैट अ शर्ट इज सेलेक्टेड इज 0.7, probability that a coat is selected is 0.5, probability that a shirt is selected given that a coat was selected is 0.1। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा शर्ट का सिलेक्शन जो है, देखो शर्ट खाली तुम जब खरीद रहे हैं, ऐसा भी होता है कि तुम खाली शर्ट खरीद रहे हैं 0.7 उसका प्रोबेबिलिटी, कोट खरीद रहे हैं 0.5, लेकिन शर्ट एंड कोट कॉम्बिनेशन है ना, शर्ट एंड कोट कॉम्बिनेशन है। मतलब जब हम इस टॉपिक पे बाद में आते हैं, हम एक काम करते हैं, अभी हम नहीं समझा रहे बिकॉज सबका लॉजिक समझा देंगे और सम्स नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा, मेरे को एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले अभी हम जितना करा दिए इतना पे समझो, दिमाग से एक चीज को क्रॉस कर दो, क्या है? कंडीशनल डिपेंडेंट इवेंट को अभी दिमाग से हटा दो, नहीं तो होगा क्या पता है, सारा कंसेप्ट अभी समझ के एक चीज समझ में आएगा, दूसरा नहीं, फिर दूसरा चीज समझ में आएगा, तीसरा नहीं, बिकॉज मुझे समझू तो कराना चाहिए ना पहले, तो पहले उसके ऊपर। तो एक और डाउट है मेरे को क्या बताऊं सर, ये ग्रेड वाला में हम आपने कहा ना कि ये होगा, उसमें अगर सारा ग्रेड का प्रोबेबिलिटी मिला दे तो 1 नहीं होगा क्या? एक बात बताओ, जरूरी है वन होगा? जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट ए ग्रेड इज 2/10, बी ग्रेड इज 3/10 एंड सी ग्रेड इज 1/10, सब का सम टोटल 1 होगा? है 1? आई मीन होगा नहीं तो 1 है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सर्टेन ग्रेड्स व्हिच आर नॉट डिस्कस्ड इन दिस बट दे आर देयर, मतलब वो है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं डिस्कशन किया जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं डिस्कशन किया जा रहा है? नहीं डिस्कशन किया जा रहा है सिंपली। तो मतलब उस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो 2/10 और डी ग्रेड का प्रोबेबिलिटी हो गया 4/10, अब तुम बोलोगे कि क्या इसके अलावा भी और ग्रेड्स हैं? चेक कर लो है या नहीं, इसके अलावा और कोई ग्रेड्स हैं ए बी सी डी के अलावा? मतलब नहीं है, कहाँ है? नहीं नहीं हो सकता है, तो देखो हो सकता है, डोंट गो इमोशनली, ठीक है? तो नहीं है 2 + 3 5 + 1 6 + 4 10 हो गया, 10/10 कितना होता है? 1। तो नहीं है इसका मतलब, वो चेक करने का तरीका, हम ऐसे नहीं जा सकते ब्लाइंडली हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, हम लोग को मैथमेटिकली जाना पड़ेगा ना। समझ में आया तो बात अभी? राज तुमको समझ में आई ये चीज? यस सर। तो अगर हम इसको आप नहीं ले तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इसको ले ले तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब तुम बोलोगे सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग ही टॉपिक हो गया, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे तुम लोग को समझाऊंगा कि देखना एक बार, मैं इंडिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में भी उसी सम से स्टार्ट किया था जब मैंने इंडिपेंडेंट समझाया था, तो और मैं उसी सम से एक बार लेके एक बार मैं समझाता हूँ, सबको ध्यान से देखना। नाउ बट हियर नाउ आई विल बी टेकिंग अ वेरी सिंपल वन, लाइक तब मैंने 3 वाला लिया था, अब मैं 2 वाला लेके कराता हूँ। देखना एक बार, पेज 1284 RSL 1, देखना एक बार, नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखना एक बार। See, Kamal and Vimal appeared. See, there are students who might think this way that ये तो आता ही, अब क्यों, अब तो क्लास छोड़ और अभी लीव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दो ही चीज तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कब लीव करें पीटी, ठीक है? प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई विल बी क्लियरिंग हियर इन दिस क्लास, सो आई वांट एवरीवन टू स्टे हियर इन दिस क्लास, ओके? सो नोट डाउन, देखो, लेट K be the event
event that Kamal will be selected. Give me the event that Vimal will be selected. Vimal is selected. Now see, सर Kamal. एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए ना नहीं है क्या क्वेश्चन तुम लोग पास? सर। बुक में बुक का कौन सा नंबर है? अच्छा देख लो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है सर. You can take the screenshot जो लोग के पास बुक नहीं है. Okay, now I am starting. So एक बार ध्यान से नोट करना. तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक बार इसको वापस से समझे, ठीक है? अगर मान लो सपोज हो रहा है दो चीज कि कमल या तो उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है. सिलेक्शन को मैं अगर के से डिनोट किया है मैंने, तो रिजेक्शन को के नॉट से डिनोट कर सकते हैं. तो बताओ तो कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या है बताओ? 1/3. तो फिर रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ना विमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5. तो विमल का रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/5. ठीक है. अब देखो, विमल और कमल दोनों का हम बात करें तो वो लोग के साथ दो चीज हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. अगर एक आदमी का हम देखें तो वो सेलेक्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो कितना सारे केसेस आ रहा है बता सकते हो तुम? 4 केसेस आ रहे हैं. देखो कैसे. देखो अगर हम अकेले कमल का देखें तो उसके साथ दो सिचुएशन आ रहा है, रिजेक्ट सेलेक्ट. विमल का भी 2 केस हो रहा है. अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली देखें, मतलब कमल एंड विमल दोनों को साथ में अगर हम देखें तो 2 2 जा 4. एंड वो 4 चीज क्या क्या है? वो 4 चीज है दोनों सेलेक्ट, दोनों में से एक सेलेक्ट एक रिजेक्ट. ठीक है. अब ध्यान से नोट करना, इसको हम कैसे लिखेंगे? कमल एंड विमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी. देखो वो इस तरह का इंटरव्यू को 1000 बार क्यों ना दे, लेकिन हर बार उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, अगर हम इस डेटा को ले, जो भी डेटा लेकर के इन लोग ने प्रोबेबिलिटी निकाला है, तो हर बार कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा और उसका रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा. समझा तो तुम लोग? तो कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी और विमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. क्या ये दोनों से डिपेंडेंट है? नहीं है. कमल का सिलेक्शन रिजेक्शन अलग केस, अलग केस. ये दोनों इंडिपेंडेंट ही है. दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो अगर हमको मान लो बोला जाए इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए के इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेट मी सी हु कैन आंसर. अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके क्या है आंसर? 1/15, 4/15, 2/15 and this is 8/15. So वो पहला वाला 1/15 होगा, 1/5 लिखा. और हम सारा को अगर ऐड करें तो आंसर 1 आ जाएगा. तो वो भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि यहाँ पे ये केस में, सुना एक बार, ये केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट में ये दोनों इवेंट कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा केसेस कैसा है? ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 कैसा है? मैं एग्जांपल ऑप्शंस दे रहा हूं. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. or are all these 4 cases mutually exclusive? Number 1. Number 2, mutually exclusive and exhaustive. Number 3, are all these 3 cases independent or dependent? Tell me which is the correct answer? Exhaustive. Independent. जिसने इंडिपेंडेंट बोला एकदम गलत बोला, जिसने एग्जॉस्टिव बोला करेक्ट बोला, लेकिन उसके आगे ये छोड़ दिया कि एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलना चाहिए था. आई थिंक दैट तुमने एग्जॉस्टिव के साथ एक्सक्लूसिव जोड़ना भूल गया शायद, बट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इज द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर? सी, बिकॉज एक बार एक इंटरव्यू में कमल एंड विमल अपीयर कर रहे हैं
तो वो आदमी के साथ क्या ये दोनों सिचुएशन एक साथ हो सकता है? बताओ तो एक बार, केस 1 एंड केस 2 के साथ दोनों ये घटना एक साथ घट सकता है? नहीं। वो आदमी के साथ, कमल एंड विमल के साथ, या तो वो ऐसा हो सकता है, या तो उनके साथ ऐसा हो सकता है, या उन दोनों के साथ ऐसा, क्योंकि हम देख रहे हैं इन दोनों को एक साथ। अगर वो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या ये 2 केस एक साथ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये 3 केस एक साथ होगा? कभी नहीं होगा। मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। अब एग्जॉस्टिव क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो सारा का सम टोटल 1 है। एक्सक्लूसिव क्यों बोला? बिकॉज ये चारों में से उसके साथ एक बार जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो क्या चारों चीज हो जाएगा? चारों केस हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? एक ही केस होगा। सर लेकिन एक डाउट है सर, ये तो हेड टेल जैसा हो गया ना, सिलेक्ट होगा या तो नहीं होगा? हाँ, वही तो, तभी तो मैंने उस समय तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, हेड टेल वाला और फेल पास वाला, ये हो गया तुम्हारा एक तरह का केस, ठीक है। लेकिन हम 2 चीज को कंपेयर कर रहे हैं ना, 2 आदमी है यहाँ पे, कमल एंड विमल। तुम कमल पे ही क्यों अटक जा रहे हैं? कमल एंड विमल 2 को देखो ना, कमल पे तुम अटक जा रहे हैं ये सोच के कि कमल सेलेक्ट हो रहा है, वो भी है, वो तुम्हारा 1/3 है, रिजेक्ट हो रहा है वो 2/3 है। तो ये तो इसमें तुम क्यों अटक रहे हैं? तुम 2 चीज को देखो ना, कमल एंड विमल। कमल का सिलेक्शन, विमल का सिलेक्शन, क्या दोनों पे डिपेंडेंट है? तुम क्या देख रहे हैं पता है? तुम कंपेयर कर रहे हैं कमल का सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। अरे ये तो डिपेंड, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, तुम उसका सिलेक्शन और रिजेक्शन को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तुमको यहाँ पे 2 अलग अलग इवेंट्स दिया गया कंपेयर करने के लिए, तुम खुद को खुद से कंपेयर कर रहे हैं। खुद का सिलेक्शन और रिजेक्शन को, मतलब एक आदमी का होने और ना होने को कंपेयर कर रहे हैं, वो मत करो तुम। यहाँ पे 2 इवेंट दिया गया, कमल एंड विमल, है ना? तो वो दोनों को देखो, तो वो दोनों अगर इंटरव्यू में जा रहा है, समझ में आ मेरा बात? जरूरी है मतलब अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे देख, कहने का मतलब यहाँ पे देखो, ऐसे आस्ते आस्ते करके डाउट क्लियर करना। प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चीज है, तो एक बार में अगर हम सारे चीज को एग्जांपल देना चालू करें तो फिर कभी हो जाएगा। यहाँ ये चीज समझ में आ गया ना जो मैंने बताया? हाँ सर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या है देखना एक बार। सर अभी डिपेंडेंट आना ही है ना हमारा, यहाँ डिपेंडेंट है ही। अब देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दैट एग्जैक्टली वन विल बी सिलेक्टेड। एग्जैक्टली वन मतलब कमल, विमल नहीं, कमल रिजेक्ट, विमल विल बी सिलेक्टेड। तो 4/15 plus 2/15, that is 6/15 is the answer. ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर हम ऐसे देखें तो कमल का हर बार सिलेक्शन का और रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी सेम है। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, वो फर्स्ट बार इंटरव्यू में जाए तो भी उसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इतना ही है, सेकंड बार जाए तो भी उसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इतना ही है। अब मैं इस चीज को और एक बार एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूं, तब जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं इस सब में एक ही आदमी है कमल, ध्यान से सुनना। इस सब में एक ही आदमी है कमल, और कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 1/3 और उसका रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब मान लो क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that Kamal if faces 3 such interviews, सुनना एक बार बात, Kamal facing 2 such interview, let's take 2 only, 3 में थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 such interview, he will pass in both the interview, he will be selected in both the interview। तो सुनना एक बार, probability that Kamal will be selected in, Kamal is selected in both the interviews, both the interview। तो पहला वाला इंटरव्यू में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी एंड दूसरा वाला क्या। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो जितना बार मैं इंटरव्यू दे, हर बार उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 1/3 ही होगा। फर्स्ट बार दे, सेकंड बार दे, थर्ड बार दे, फोर्थ बार दे, और रिजेक्शन इतना ही होगा। तो अगर वो ऐसा 2 इंटरव्यू फेस कर रहा है तो पहला में भी वो पास होगा, दूसरा में भी पास होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? बताओ। इंडिपेंडेंट है। समझ में आया तो बात? अब इसको ऐसे समझो, तुम समझ में आया तो अभी क्लियर हुआ होगा। और इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी कमल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल इज सिलेक्टेड इन सेकंड आल्सो, दैट इज 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी। अभी समझ में आया तो बात? इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा। सर मतलब कमल सिलेक्ट होगा, श्योर है? तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं कि सिलेक्ट? अरे कमल, हम बोल रहे हैं कि कमल विल बी सिलेक्टेड इन बोथ द केस, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। कमल सिलेक्ट होगा वो श्योर है,
उसका मतलब आई मीन लाइक कहने का मतलब है लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमल इज सिलेक्टेड। हम समझे नहीं चाहते तुम्हारा क्वेश्चन, बोलो एक बार फिर से। एक बार Sir, मैं हम बोल पहले रहे हैं- कंप्लीट कर लेता हूं, एक मिनट। मैं मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ कमल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इन इंटरव्यूज दिस, रिजेक्शन विल बी ऑब्वियसली दिस। जैसे हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ है तो टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। तो अगर हम दो बार कॉइन को टॉस करें तो दोनों हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ इनटू हाफ हुआ बिकॉज़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और सिमिलरली जैसे कमल इज सिलेक्टेड इन बोथ द इंटरव्यू विल बी व्हाट, दोनों का प्रोडक्ट। अब आगे बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है फिर से। सर हो गया। सर अगर यहाँ पे कमल विमल इंटरव्यू के लिए जाता है और अगर एक वैकेंसी होता तो